Hello everyone. Today we are going to start the development of seed from ovule. In last lecture we have studied about development of embryo and development of endosperm. Especially embryo is developed from zygote by the process of mitotic cell division and endosperm is developed from primary endosperm cell. So basically, we have discussed about three type of endosperm: nuclear endosperm, cellular endosperm, and last halobial endosperm with examples. And then monocote embryo development and dicote embryo development. So you should remember these main important topics. And now today we are going to start development of seed. You know, seed is very important part of plant, and after germination of seed, new generation is developed. Actually, seed is developed from ovule after fertilization. किससे बनता है seed? After fertilization, ovule से. तो remember the structure of ovule. You know, ovule को अगर हम देखें, then this is the diagram of a typical ovule. And in the center, you can see it is the embryo sac. And these are synergid cells and these are antipodal cells. But after fertilization, zygote is developed. So zygote is developed, then zygote forms embryo. And outer structure is formed endosperm by division of this nucleus. तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. अब बेटा इस ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा. ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे सीड में. अंदर जैसे सपोज दैट यहाँ एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहे हैं, देन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड. बट एम्ब्रियो, प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलिडन्स, ये सब इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. अब यहाँ ये जो सीड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? स्टोर्ड फूड होने के कारण डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. इट प्रोवाइड्स nutrition to developing embryo. क्लियर? अब न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है देखो, यहाँ ये एंडोस्पर्म से अगर हम कहें कि यहाँ इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये सीड फॉर्मेशन कैसे हुआ? फिर इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ में ये जो ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल, एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड ड्यूरिंग दिस developmental stage, or it is also involved in post fertilization event in which ovule converts into seed. तो seed formation किससे हुआ? by mature ovule or by ovule after mature ovule. After maturation of ovule, seed is developed. डियर स्टूडेंट्स, ये जो बाहर के दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? आउटर इंटेग्यूमेंट पढ़ा था, एंड देन इनर इंटेग्यूमेंट. आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. तो सीड डेवलपमेंट के टाइम कौन सी स्ट्रक्चर क्या बनाती है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आउटर इंटेग्यूमेंट फॉर्म्स outer layer of seed which is known as, सपोज दैट ये सीड का आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसको बोलेंगे टेस्टा. तो आउटर मेम्ब्रेन और आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू टेस्टा सीड कोट और आउटर सीड कोट विच इज हार्ड एंड रफ एंड अदर इन अदर शेप वी कैन से दैट अलग अलग सीड्स में. तो जो हार्डेस्ट बाहर का जो लेयर होती है सीड की, वो होती है टेस्टा लेयर, एंड दैट इट इज फॉर्म्ड बाय दिस आउटर इंटेग्यूमेंट. इफ इनर integument is present, then inner smooth
thin layer is developed which is called as tagmen. It is called as tagmen. So first you should know about the two layers of seed. Outer layer is known as testa and inner layer is known as tagmen. Testa is developed from outer integument and tagmen is developed from inner integument of ovule during formation of seed. बट एक जगह ऐसी है जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है, बताओ कौन सी जगह? ये माइक्रोपाइल पोर. दिस इज माइक्रोपाइल. तो क्या ये सीड कोट में एक जगह ओपन रहेगी? या यहाँ सपोज दैट माइक्रोपाइल पोर है तो ये इंटेगुमेंट टेस्टा टैगमेन वहाँ पे नहीं बना पाएंगे. देन दिस इज द पोर बाय विच सीड इज जर्मिनेटेड after absorption of water, after using of oxygen, after exchange of gases. During seed germination, this micropylar pore is helpful. So seed germination किस पोर से होता है? वो ये पोर है. और ये किसने बनाया? माइक्रोपाइल ने बनाया. माइक्रोपाइल क्या है? वो पोर है जहाँ इंटेगुमेंट्स की कवरिंग नहीं पाई जाती. और सीड जर्मिनेशन कहाँ से होता है? Then this is the place, this is the pore by which seed germination takes place during germinating process. So ये एक important part हम फिर discuss करेंगे. Then seed formation के time ovule की outer जो covering है, then integuments वो testa और tegmen layer बना रहे हैं. तो फिर बाकी parts कैसे बनते हैं? बाकी parts क्या बचे? अंदर वाला जो ये cell वाला जो portion है, cellular portion, it is called as nucellus. ये न्यूसिलस ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के सीड जर्मिनेशन के टाइम डीजनरेट हो जाता है. इसकी सेल्स जो टिश्यूज हैं अंदर जो भरे हुए वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड दीज ऑल सेल्स आर डीजनरेटेड और विल बी डीजनरेटेड. एंड देन जो इनर पार्ट है ये देखो, ये वाला हम बना ही रहे हैं. ये इसके चारों तरफ क्या बन रहा है? ये पोर्शन बन रहा है एंडोस्पर्म. तो दिस इज एंडोस्पर्म. और बीच में ये जो बन रहा है ये क्या है? एम्ब्रियो. इन विच प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियोनिल एक्सिस आर प्रेजेंट. सो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीड के अंदर चल रहा है. सीड किससे बन रहा है? ओव्यूल से. ओव्यूल में क्या क्या है? आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा को बनाता है एंड इनर इंटेगुमेंट टैगमेन लेयर को बनाता है. टेस्टा एक हार्ड लेयर है जो प्रोटेक्शन देती है सीड को और टैगमेन एक थिन लेयर है जो इनर पार्ट को कवर करती है. देन वन पोर जो माइक्रोपाइल था इंटेगुमेंट में, दिस इज माइक्रोपाइल पोर. ये यहाँ सीड कोट बनते टाइम ओपन रहता है और छोटा सा पोर होता है जो कि जर्मिनेशन के टाइम सीड को हेल्प करता है ऑक्सीजन का यूज करके. एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन प्रोसेस. सो ये आपको याद रखना है. अब यहाँ ये जैसे सीड के अंदर मान लो सपोज दैट डाइकोट प्लांट है तो इसका ये एम्ब्रियो अंदर सीड के अंदर प्रेजेंट है. क्लियर? अब बाहर इसके फ्रूट बनेगा. ओवरी है इसके बाहर, कार्पल की ओवरी पार्ट. सो ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. अब यहाँ ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड, एंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड. दीज आर ऑल्सो नोन एज albuminous seeds and non-albuminous seeds. So it is the question that what is the difference or what are the differences between endospermous seed and non-endospermous seed. और जो सीड कन्वर्ट होता है क्या वो सीड बनते ही डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है या वो जर्मिनेट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे. देखो जैसे ये सीड बन गया, मैंने अभी बताया आपको, टेस्टा एंड टैगमेन लेयर हो गई. ठीक है, यहाँ माइक्रोपाइल पोर हो गया. देन अब ये सीड के अंदर जैसे सपोज दैट इसके अंदर एम्ब्रियो है, अगर डाइकोट एम्ब्रियो है तो वो इस तरह से माइक्रोपाइल पोर की तरफ उसमें क्या बन रहा है? सस्पेंसर. और धीरे धीरे सस्पेंसर जो है उसका लॉस हो रहा है और पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. तो ये जो सीड कोट यहाँ पे
ये सीड है, अब तुरंत जो है वो जर्मिनेट नहीं होता अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, देन इट गोज इनटू डोरमेंसी पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी? इट इज अ सस्पेंडेड कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट. सस्पेंडेड मतलब रुक जाती है. अगर कोई प्लांट को, सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो स्टोर्ड कंडीशन में ही रहता है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है. उसके अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो रिलीज हो जाते हैं और वो ड्राई हो जाता है. 10 to 15% ही उसमें मॉइस्चर बचती है. सो इस कंडीशन में उस पीरियड को हम डोरमेंस पीरियड बोलते हैं. डोरमेंसी पीरियड, dormancy period, this is period in which seed is not properly germinated, and if favorable conditions will become, then it will be germinated, sorry. तो germinated होने के लिए इसका dormancy period से हटना जरूरी है. और dormancy period and this condition is known as seed dormancy. It is known as seed dormancy. Seed dormancy, and it is suspended condition of seed in which it does not germinate properly. Even कंडीशंस में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल. एक पीरियड होता है सभी प्लांट्स के अंदर सीड डोरमेंसी का, वो उनको क्रॉस करके ही जाना पड़ता है. कुछ प्लांट्स में ये कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है. सीड्स में जैसे कुछ प्लांट्स अपन घर पे यूज़ करते हैं तो उनके सीड्स हम स्टोर करके रख लेते हैं कि वो डोरमेंसी पीरियड में होंगे, जब उनका सीजन आएगा तब हम उनको सॉइल में डालते हैं और वो ग्रो कर लेते हैं. दैट मीन्स उनका जर्मिनेशन होता है, लेकिन उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, फेवरेबल सॉइल चाहिए, फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए. तो वो सब चीज़ें अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होती है. कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं लाइक एज कुछ विंटर प्लांट्स हैं, कुछ समर प्लांट्स हैं, कुछ रबी क्रॉप्स हैं, कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं. सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और देयर सीड्स आर जर्मिनेटेड इन डिफरेंट टाइम और डिफरेंट सीजन, वी कैन से दैट. सो सीड जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड पीएच, रिक्वायर्ड सॉइल मिनरल्स जो चाहिए, सीजन चाहिए, वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइम पे आता है. तो उस पीरियड में जब तक वो जर्मिनेट नहीं होते, उस पीरियड को याद रख लीजिए, डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं. एंड इट इज नोन एज ऑल्सो सीड डोरमेंसी, इन विच seed is protected or seed is not germinated, and it is present, we can say that in favorable condition. In after coming of favorable condition, it will be germinated by the absorption of water, by the using of oxygen, and by using of minerals. Plumules and radicals are developed, and then it will be changed into new plantlet, and soil is required, sunlight is required for प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दिस सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड. सो हम कह सकते हैं कि वो बाद की बातें हैं. अब हम सीड की बात कर रहे हैं आज कम्प्लीटली. तो सीड कैसे बना ये मैंने बताया आपको. सीड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है. सीड के अंदर आप देखेंगे कि सीड कोट है, सीड हैव सीड कोट. देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सीड. पहले मैं बता देती हूँ कि सीड में क्या क्या है. सीड कोट में मैंने दो बताया आपको. आउटर कोट इज नोन एज टेस्टा, inner coat is known as tegmen. Testa and tegmen. And then embryo. Inside the seed, embryo is present. Embryo may be dicote or monocote. And embryo has embryonal axis and cotyledon. If one cotyledon is present, then it is called as monocote embryo. Two are present, then it is called as dicote embryo. So embryo is present inside the seed, and it is protected by the seed coat, and it is protected for long time. After germination, we can say that plumules and radicals, shoot apex and root apex will be developed from during germination. shoot apex जैसे कि यहाँ से मैंने बताया था plumule, और इधर से radical develop होगा, plumule और radical. तो वो जो germination होगा प्लूम्यूल और रेडिकल, वो इस एम्ब्रियो से होगा, ना कि सीड से. अगर सपोज दैट कोई सीड है और उसमें एम्ब्रियो नहीं है तो उसका ग्रोथ
आगे नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, रेयर केसेस में, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, उसमें जो है एगेमोस्पर्मी है, दैट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड कन्वर्ट्स इनटू न्यू प्लांट। सो इस तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, वो बात अलग है, बट नेचुरली नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियो कभी भी विदाउट एम्ब्रियो ये सीड नए प्लांट में डेवलप नहीं हो सकता। केवल सीड क्या कर रहा है, केवल प्रोटेक्शन दे रहा है। एक्चुअल में तो नई जनरेशन कौन बना रहा है, किस में जेनेटिक मटेरियल है, किस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज इन साइड द इंटरनल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। देन डोरमेंसी पीरियड आप याद रखेंगे, डोरमेंसी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीड डोरमेंसी क्या होती है, सभी प्लांट्स में अलग अलग सीड डोरमेंसी होती है। कुछ प्लांट कुछ महीनों के लिए सीड डोरमेंट स्टेज में जाते हैं, कुछ काफ़ी टाइम के लिए सीड डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं। और जैसे सपोज दैट कुछ प्लांट्स के अंदर डोरमेंसी पीरियड काफ़ी लंबा होता है, जैसे उनके सीड्स मिलते हैं, उनको अगर हम जर्मिनेट करने की कोशिश करें तो वो जर्मिनेट हो सकते हैं। फॉसिल्स भी मिले हैं बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स के, तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। देन व्हाट आर द मेन टाइप्स रिलेटेड टू सीड, नेक्स्ट पॉइंट, there are two types of seed. First we will discuss about non-endospermic seed or non-albuminous seed. What is the meaning of non-endospermic seed? एंडोस्पर्म कहाँ पे प्रेजेंट है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके बाहर की तरफ एंडोस्पर्म है। अगर वो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो वो क्या बनेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सो इट इज द क्वेश्चन दैट difference between differentiate between we can say that non-endospermic seed and endospermic seed. तो इसका आंसर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को समझने के लिए आपको याद रखना है दो डिफरेंस मेन है। When endosperm is completely consumed by developing embryo or after development of embryo, complete endosperm is consumed, then it is called as non-endospermic seed or non-albuminous seed. Or we can say that if endosperm is absent after development of complete embryo, then it is also known as a non-endospermic seed. अब इसका मतलब समझो, देखो अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो ने क्या किया, एंडोस्पर्म को यूज किया, ये एम्ब्रियो है, देन इफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया कंप्लीट, सपोज दैट ये डाइकोट एम्ब्रियो है, इसमें सारी सेल्स हैं, लेकिन जो बाहर एंडोस्पर्म था वो पूरी तरह से इसने क्या कर लिया, यूज कर ली, क्लियर। और कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, यानी कि एंडोस्पर्म सीड में बचा ही नहीं। तो जब सीड डेवलप हुआ, टेस्टा बन गया, टैगमेन बन गया, एंड देन एम्ब्रियो बन गया। ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, टेस्टा, टैगमेन एंड एम्ब्रियो, बट एंडोस्पर्म इसमें रिमेनिंग नहीं है। तो अगर एंडोस्पर्म रिमेनिंग नहीं है और एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट के टाइम कंप्लीट एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, देन इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या है, एंडोस्पर्म एब्सेंट। Endosperm absent. Then what is the meaning of this non-endosperma seed? If endosperm is absent during development or after development or after maturation of seed, and second difference is then all endosperm is consumed by developing embryo after maturation, we can say that seed have not endosperm, then it is called as non-endospermic seed. So if all endosperm is absorbed by developing embryo and the seed is known as non-endospermic seed. जैसे एग्जाम्पल की बात अगर अपन करें तो मोनोकोट प्लांट्स,
सॉरी डाइकोट प्लांट्स याद रख लेना, डाइकोट प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल ऑल पल्सेस, दाल जो होती हैं पल्सेस लाइक ग्राम, पी, ब्रॉड बीन and groundnut. They are best example of non-endosperma seed. In these plants, seed have not endosperm after development of complete seed and development of embryo, and whole endosperm is consumed by developing embryo or absorbed by developing embryo. So it is present in especially dicot plant. Clear? एंड डाइकोट प्लांट का एक तरीका मैं बता देती हूँ याद करने का कि डाइकोट प्लांट्स में जैसे मैं बात करती हूँ कि 2 कोटिलिडन्स हैं, तो इनके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है ऑल्सो। तो ये जब कंज्यूम कर लेगा तो इसके बाद इसको सर्वाइव करने के लिए थोड़े बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, वो इसके पास में 2 कोटिलिडन्स कंप्लीट कर देंगे, तो इसका एंडोस्पर्म कंप्लीटली पहले ही यूज हो जाता है। देन नेक्स्ट इज एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। endospermic seed or albuminous seed. So it is second type of endospermic seed or seed type of endospermic seed. That means if endosperm is present after the development of embryo and it is completely not consumed by developing embryo, then the seed is known as endospermic seed, and we can say that remaining endosperm is present after maturation of seed or after development of seed. So if all the endosperm is not absorbed, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, it is not absorbed by the developing embryo, then this type of seed is known as endospermic seed. Clear students? Best example related to endospermic seed is monocot plant. In monocot plants like as wheat, like as maize, grasses, castor, sunflower, especially we can say that castor, wheat, maize, these are grasses, these are monocot plants in which only endospermic seed or albuminous seed is found. You can see in this diagram, this is embryo and endosperm, remaining endosperm is present around the embryo after development. So complete endosperm is not consumed. Remaining endosperm is present. And endosperm is present, then it is called as endospermic seed. So you can say that if seed have endosperm after development of embryo, then it is called as endospermic seed. Again, second difference, if all endosperm is not consumed sorry, if all endosperm is not consumed by developed embryo or after development of embryo, then it is also known as endospermic seed, because endosperm is present in this type of seed after development. अब ये बाहर ओव्यूल किस में चेंज हो रहा है, ओव्यूल जो है फॉर्म कर रहा है सीड और इसके अंदर एंडोस्पर्म रह गया और सीड.
So this is the diagram, and this is main feature related to endospermic seed. Okay. Next, it is a diagram of broad bean seed and नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड में डिफरेंस अगर हम करें तो किस तरह से करेंगे कि सीड कंप्लीटली बन चुका है, ब्रॉड बीन का जो सीड होता है, और देन मेज, मक्का आपने सबने खाया है, तो मेज एंड ब्रॉड बीन के सीड के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. देन दीज आर एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. फर्स्ट, ब्रॉड बीन in which endosperm is completely consumed and only cotyledon is present. It is cotyledon. Clear? And cotyledon के अंदर endosperm absent है, cotyledon present है only, वो न्यूट्रिशन दे रहा है, बट endosperm इसमें नहीं है. तो ये क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है. इसमें देख सकते हैं आप, इट इज नोन एज प्लूम्यूल फॉर्म शूट अपेक्स, एंड देन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ शूट after development of this shoot apex, shoot is developed, and this is the lowermost part, radical. It represent to root apex part. It has some meristematic cells which divides in a mitotic cell division, through a mitotic cell division. We can say that mitotic cell division ही यहाँ पे development और growth के time होता है. Meiosis only takes place during gamete formation in most of plants and animals. तो ये रिमेंबर हमेशा रखना, जहाँ पे भी आप डिवीजन बताते हैं, देन मियोसिस आपको सिर्फ गैमेटोजेनेसिस और ड्यूरिंग इन वी कैन से दैट प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपको ये मियोसिस शो करना. बाकी सब जगह डिवीजन कौन सा होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन. तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ उसके बाहर कोई एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा आपको ये, तो इट इज ए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एंड इट इज डायग्राम ऑफ मेज सीड इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. एंडोस्पर्म क्लियरली आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म. so its nutritional value is also high. इसमें क्या बढ़ गई है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ गई. इट इज एंडोस्पर्म. ओके स्टूडेंट्स, तो एंडोस्पर्म रिमेनिंग अगर है तो ये सीड क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड. क्लियर? एंड दिस इज कॉटिलिडन. सपोज दैट ये अगर इसका सीड है, मेज का है, इसी तरह से व्हीट का होता है, तो ये जो कॉटिलिडन है इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम. एंड यहाँ पे रूट अपेक्स, शूट अपेक्स डेवलप हो रहा है. तो ये जब जर्मिनेट होगा सीड तो इसमें से शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स निकलेंगे, प्लूम्यूल रेडिकल, एंड देन कंप्लीट प्लांटलेट बनेगा. तो यहाँ में इसको जब ग्रो करवाया जाता है फेवरेबल कंडीशन में तभी तो डेवलप करेगा ना ये प्लूम्यूल रेडिकल कंप्लीटली. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सीड डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं. जब वो मैच्योर होते हैं तो उनकी बॉडी में उनकी जो सीड है उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, मॉइस्चर रिलीज कर जाती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे लंबे टाइम तक. ड्राई हो जाते हैं वो काफ़ी, आपने देखा होगा सीड्स में. एंड देन उनका एम्ब्रियो जो है वो कैसे लिविंग कंडीशन में रहता है बता सकते हो, कि उसका कंप्लीट वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया, सस्पेंडेड कंडीशन में चला गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें रुक रखी. तो फिर अंदर सीड कैसे सर्वाइव कर रहा है, सॉरी अंदर एम्ब्रियो कैसे सर्वाइव कर रहा है. देखो बेटा, एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स हैं और अब वो उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं जब तक कि उसका डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता. तो यहाँ इसको भी ये कॉटिलिडन भी न्यूट्रिशन दे रहा है, प्लस ये एंडोस्पर्म भी इसमें बचा हुआ है. तो ये व्हीट और मेज और ये जो है इनके अंदर हम देख सकते हैं shoot apex plumule and root apex radical.
रेडिकल और रूट अपेक्स। तो जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय अगर हम इसकी बात करें दोनों एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक की डिफरेंस की, तो फर्स्ट डिफरेंस इज व्हेन सीड हैव नॉट एंडोस्पर्म आफ्टर डेवलपमेंट of embryo after maturation, then this type of seed is known as endospermic seed. And if all endosperm is consumed, it is absent. If endosperm is present, then it is called as endospermic seed. If endosperm is completely consumed by developing embryo and it is not present in complete developed seed or embryo, then it is called as a non-endospermic seed. Like as dicot plant are non-endospermic seed, most of dicot plants are non-endospermic. For example, like groundnut, pea, maize, pulses, green gram, these are example of in which non-endospermic seeds are present. And then endospermic seeds having plants are like as monocot plant have endospermic seed. Most of monocot plant, for example, castor, grasses, maize, wheat, rice, and other example also sunflower, they have monocot plant, so they are monocot plants, so they have endospermic seed. Clear students? So this is basic diagram. देखो जब डेवलपमेंट होता है तो एक जो प्लांट है तो जैसे सपोज दैट ये कैलिक्स, देन कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड ये वाले पोर्शन में जैसे मैंने कहा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ओवरी से फ्रूट बन रहा है, फिर ओवरी के अंदर सीड बन रहा है, सीड के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, देन बाकी पार्ट्स का क्या होगा फ्लावर्स के, बाकी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये कहाँ गए, ये सपोज दैट ये एंड्रोसियम से पोलिनेशन हो गया एंड पोलन ट्यूब बन गई, फिर तो कैलिक्स या हम कहें कि सेपल्स, फिर कोरोला पार्ट यानी कि पेटल्स, sepals of calyx, petals of corolla, and then stamen, ये सब नीचे गिर जाएंगे। जैसे ही फ्रूट डेवलप होगा देन ये सभी पार्ट्स नीचे गिर जाएंगे एंड देन बीच में ये जो पार्ट है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? फ्रूट के अंदर सीड बन रहा है, सीड के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, तो सीड जर्मिनेशन तब होगा ना जब उसके अंदर प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड जब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी बस। बट उससे पहले उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसके बाहर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, देन सीड कैसे बनता है, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रूट कैसे बनता है। सो this is a part related to seed formation. Ovule, if one ovule is present in ovary, अगर हम कहें कि ओवरी में अगर वन ओव्यूल ही प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओवरी है ये कितने सीड बनाएंगे, सिंगल सीड। अगर उसमें बहुत सारे ओव्यूल है, जैसे सपोज दैट ओवरी के अंदर क्या है, इस तरह से सीड बने हुए, ओव्यूल बने हुए बहुत सारे, तो ये मल्टी सीडेड कंडीशन में आ जाएगी। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू सीड डेवलपमेंट। अब बाकी के जो पार्ट उसमें भी हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि ओव्यूल के अंदर और क्या बच गया, सीड फॉर्मेशन के बाद में ये सीड बन रहा है, यहाँ पे जो पार्ट है ये मैंने कहा था न्यूसिलस। तो न्यूसिलस का क्या हुआ, न्यूसिलस की सेल मैंने कहा था डीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च में आप देखेंगे कि जैसे ये सीड बना, ये सीड बन गया, सीड के बाद में ये एंडोस्पर्म अंदर एंडोस्पर्म बन रहा है, लेकिन ये न्यूसिलस की सेल्स जो है वो रिमेनिंग रह जाती हैं इसके बाहर,
यानी कि एंडोस्पर्म, अंदर तो एम्ब्रियो बन रहा है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। कुछ प्लांट्स में जैसे ब्लैक पेपर में कुछ और स्ट्रक्चर बन जाती हैं सीड के ड्यूरेशन डेवलपमेंट टाइम में, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्यों नाम दिया इसको पेरिस्पर्म? बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोस्पर्म, आउटसाइड द एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट। तो पेरिस्पर्म का क्या रोल है यहाँ पे? कोई खास इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ब्लैक पेपर में ये एक स्ट्रक्चर और बन जाती है सीड डेवलपमेंट के टाइम, इसलिए आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। सो पेरिस्पर्म इज फॉर्म्ड इन ब्लैक पेपर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे, remnants of nucellus are also peristatent. This residual peristatent nucellus is the perisperm, black pepper and beet. इनमें ये एग्जाम्पल देखा गया है। मैंने बताया ना आपको कि जो न्यूसिलस है उसका सीड फॉर्मेशन के टाइम कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो डीजनरेट हो जाता है। बाकी के पार्ट्स का भी मैंने बता दिया, फ्लावर्स के पार्ट्स भी, वो भी फ्रूट बनते ही गिर जाएंगे। लेकिन ये जो न्यूसिलस पार्ट है, इस न्यूसिलस पार्ट की जो सेल्स है वो रिमेनिंग रह जाती हैं किसमें? ब्लैक पेपर में, और एक लेयर बना लेती हैं इसके चारों तरफ। और ये जब डेवलप होता है एंडोस्पर्म के, पूरा सीड बन गया ही, तो सीड बनते टाइम इस एंडोस्पर्म जो है उसमें, अगर हम कहें कि सीड का जो एंडोस्पर्म है, बाहर तो बन रहा है सीड कोट, ये है सीड कोट, ठीक है। चलो प्रॉपर इसको समझा देती हूँ मैं एक बार। इट इज सीड कोट, आउटर सीड कोट, it is inner seed coat, testa-tegmen. Then it is endosperm, it is embryo. Suppose that at micropylar pole embryo is developed, heart shape embryo is developed. ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है अंदर सेंटर में माइक्रोपाइलर पोल की तरफ। ये इसका एंडोस्पर्म है जो इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर अगर बन जाए, दिस वन, तो इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। दैट मीन्स न्यूसिलस पार्ट जो है वो रिमेनिंग बच गया, पेरिस्पर्म इसमें इसको कवर कर रहा है एंडोस्पर्म को धीरे धीरे चारों तरफ से। सो इट इज नोन एज पेरिस्पर्म। ये किससे बना? न्यूसिलस, रिमेनिंग न्यूसिलस सेल, इससे पेरिस्पर्म बन जाता है। कुछ सीड्स के अंदर, जैसे कैस्टर सीड जो है उसके अंदर आप देखेंगे, कैस्टर सीड आपने देखा होगा, एक वाइट प्लग जैसी स्ट्रक्चर सीड के एक साइड में प्रेजेंट होती है। वाइट कैस्टर के बीज देखे अगर किसी ने, तो सफेद रंग की एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है एक एंड पे, इट इज कॉल्ड एज कैरंकल। तो ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन जो माइक्रोपाइलर पोल है, जो माइक्रोपाइल पोर रह जाता है, कई बार उस पर कुछ प्लग्स बन जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर का डिपोजिशन हो जाता है फॉर डॉर्मेंसी पीरियड। इट इज नोन एज ए वाइट स्ट्रक्चर कैरंकल, कैरंकल, ठीक है। एंड कुछ प्लांट्स के अंदर इसी तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, different white structure or other structures developed at the one micropylar end which is known as operculum. क्या बोलेंगे इसको? operculum. तो कैरंकल बन जाती है, ओपरक्यूलम बन जाती है, एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक्चुअल में ये माइक्रोपाइल पोर क्या रहता है? ओपन। माइक्रोपाइल जो कि सीड पोर बनाएगा एक, और ये सीड पोर क्या करेगा? जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो
this portion is related to germination of seed, but in some plants like castor, a white plug-like structure is developed on the end and then it is known as caruncle. For example, castor के अंदर आप इसका example याद रखें. And in some plant outside the endosperm, one more structure is present which is called as perisperm. It is developed by nucellus, remaining nucellus, and it is present in black pepper. Best example, black pepper or some beets. And in another monocot plant, some white structure is developed on the one end of seed which is called as operculum. Clear? So these are some definitions or some other points related to seed development. So today we have discussed about two type of seed and development of seed. First, we can say that endospermic seed, in which endosperm is present after complete development of embryo or after maturation of seed, and we can say that it is known as endospermic seed because endosperm is not completely consumed by embryo during development. Two difference होंगे इसमें. Third difference होगा examples का. Endospermic seeds are normally monocot plants like as wheat, rice, maize. These are best example related to endospermic seed. Second type of seed we have discussed about non-endospermic seed, in which endosperm is not present in complete developed seed and it is completely consumed by developing embryo or during development of embryo. So it is known as non-endospermic seed because mature seed have not any remaining endosperm. And dicot plant, most of dicot plants are non-endospermic. For example, they have non-endospermic seed. For example, gram, pea, pulses, green gram, they have non-endospermic seeds. Outer layer of integument, we can say that outer integument forms outer layer of seed which is called as testa. It is thick hard layer of seed which protects seed and embryo both. And seed is very important, you know, for germination, for continuity of species, and it also protect the embryo in extreme conditions. So it helps in protection of a plant. And we can say that what are other importance of seed. So for farmers these are very important. They have genetic material containing embryo, so they are very important for crop improvement program. Some hybrid seeds are very helpful in enhancement of some desired characters or quantity or quality of plants and their productivity, we can say that. And then some plants are disease resistant, some plants are wild species, some plants are specific features containing, so they are also hybridized and then their hybrid seeds are developed. And seeds are very important for continuity of species from generation to generation. They maintain continuity and then they preserve or they protect the embryo in extreme conditions because they involves in dormancy period. We can say that they uh, uh, dormancy period they show, in which only some material is present in mature seed, remaining water is excreted from seed and then it becomes dry and it is known as dormant seed, and this is known as seed dormancy. So seed dormancy important point है. एक इसमें नॉन एंडोस्पर्मस एंड एंडोस्पर्मस सीड के बीच के डिफरेंस को आपको याद करना है. देन वाइट प्लग लाइक स्ट्रक्चर कैस्टर हैव विच इज नोन एज कैरिंकल, and what is perisperm and in which plant it is present, then it is called as example is black pepper. Black pepper have perisperm. Then micropyle pore का क्या function होता है, then it helps in germination of seed after absorption of water and oxygen during germination, we can say that. And in which plant perisperm is present? Black pepper. And second one layer is tegmen, which is developed by internal integument. And in most of plants, nucellus part or nucellus cells which surround the embryo sac are degenerated during development of seed, but in some plants like as black pepper it is remaining and
it is known as perisperm. Clear? So these are some important points related to seed development. In our next lecture, we will discuss about fruit development. Thank you. Have a nice day.